Hello friends, how are you all? I hope you all are good. So please don't forget to like and subscribe my channel and do share it with your friends. Okay, so let's start with section 26, that is members and staff of the tribunal to be public servant and their control. Okay, कौन होंगे members of the staff will be public servants और public servant हम कहाँ पढ़ते हैं section 21 of the IPC. Okay, let's start. The presiding officer and the employees of the rent tribunal and appellate rent tribunal shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the IPC 1860. Okay, done? Clear. The presiding officer of rent tribunal and appellate rent tribunal shall function under the administrative and disciplinary control of the High Court, which is very important. किसके अंडर काम करेंगे? High Court. But appellate rent tribunal और rent tribunal कौन बना सकता है, कौन फॉर्म कर सकता है? That is state government. Okay, हम earlier पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पर किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर काम करेंगे? हाई कोर्ट. ओके, देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज जनरल पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द रेंट ट्रिब्यूनल्स. ओके, ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? सुप्रिटेंडेंस करेंगे एंड कंट्रोल ओवर द किसके ऊपर? रेंट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर under his jurisdiction, including the power of appraising the work, recording the annual confidential reports. ठीक है, annual ACR भरेंगे उनकी of the presiding officer of the rent tribunal. Okay, clear? एक बार और पढ़ते हैं. That is, the presiding officer of the appellate rent tribunal shall exercise general power of superintendence and control over the rent tribunal under the jurisdiction. ठीक है, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अप्रेजिंग द वर्क. और क्या क्या काम कर सकते हैं उस जुरिस्डिक्शन के अंदर? क्या क्या काम कर सकते हैं? उनके वर्क को अप्रेज कर सकते हैं. ओके, सेकेंड उनकी एसीआर भर सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज एसीआर? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स. ओके, ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल. क्लियर? नेक्स्ट, the ministerial employees of Rent Tribunal and Appellate Rent Tribunal shall be governed by the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rule 1986. Okay, this is very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज ऑफ राजस्थान ट्रिब्यूनल और किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? ओके, दैट इज राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1986. ओके, और इनको क्या समझा जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स द एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम टू बी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन जज. ओके, एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल को क्या समझा जाएगा? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर सेकेंड इज सेशन जज. ओके, एंड रेंट ट्रिब्यूनल को क्या समझा जाएगा? दैट इज सिविल जज सीनियर डिवीजन. ओके, आप कैसे याद कर सकते हो? दैट इज जब भी इसका किसका रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? आरजीएस होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन. तो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो कि रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ सिविल जज और कौन होगा? सीनियर डिवीजन. ओके, सिंपल. नेक्स्ट, class 4 employees of the rent tribunal and appellate rent tribunal shall be governed by the किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? राजस्थान क्लास 4 सर्विसेज recruitment and other services conditions rule 1999. Okay, clear? Any doubt you can ask me, you can comment and you can ask me. Okay, next we have 26A, rent authority to be public servant and protection of actions. Okay, जो हमने पहले पढ़ा है 26 में वो है 26A regarding rent authority. Okay, the presiding officer of the rent authority appointed under this act shall, जो भी अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी that will also be deemed to be a public servant. Okay, so what it says, be deemed to be the public servant within the meaning of section 21 of the IPC. ठीक है, पढ़ लिया हमने. No suit or other proceeding shall lie against the rent authority. अगर उसने गुड फेथ में कुछ काम किया है तो कोई उसके अगेंस्ट कोई भी सूट्स या प्रोसीडिंग्स नहीं लाई करेगी. सिंपल. ओके, 27 27 इज लिमिटेशन. ओके, क्या लिमिटेशन होगी? कितने टाइम में पिटीशन फाइल की जाएगी, अपील फाइल की जाएगी और ये सब. ठीक है, चलो देखते हैं. Subject to the provisions of this act, the provision of Limitation Act 1963 shall, as far as may be, apply to petitions, applications, appeals and other proceedings filed or proceeded before the rent tribunal, appellate rent tribunal. ठीक है, जो भी लिमिटेशन एक्ट में दे रखी है वो सब अप्लाई करेगी यहाँ पर भी, अपील फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए और या फिर पिटीशन फाइल करने के लिए. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज कोर्ट फीस.
कोर्ट फीस आ सकता है इसमें से भी क्वेश्चन, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है. Section 28 is court fees. Except as provided in subsection 2, 3, 4, the court fees on petitions, applications and appeals filed before the tribunal, उनकी court fees क्या होगी, okay, would be the same as would be payable if suits, application or appeals were filed to the similar relief before the civil court. ओके, कौन सी होएगी? जो सिविल कोर्ट में फाइल की जाएगी वही सेम एप्लीकेबल की जाएगी. इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि सिविल कोर्ट्स के पास आप जितनी कोर्ट फीस करते हो उस रिलीफ को मांगने के लिए उतना ही आप रेंट ट्रिब्यूनल की कोर्ट फीस आप पे करोगे वहां पर. ओके, नेक्स्ट, और एक जॉइंट पिटीशन फॉर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी. ओके, सेक्शन 8 में हमने देखा था ना कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज नॉट मोर देन 3 years और 3 times के लिए दिया जा सकता है. ओके, so what it says under section 8, and on appeal against any order on such a petition, ad valorem court's fee under the Rajasthan Courts Fees and Suits Valuation Act 1961 shall be payable on the amount of rent payable for the year next before the date of presentation of the petition. Okay, irrespective of the period for which the limited period tenancy is sought to be entered. Okay, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, अगर हम सिलेबस कंप्लीट करें तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव, और एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E और अ पिटीशन अंडर 23, 24 और एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन और पिटीशन अ फिक्स्ड कोर्ट फीस दे रखी है इन्होंने 100 रुपीज. ओके, जो 22E में लगाई जाएगी, जो सेक्शन 23 है, 24 है. ओके, जो हम अर्लियर पढ़ चुके हैं, उन सब में कितनी होगी? 100 रुपीज होएगी. बट रिवीजन के टाइम, ओके, क्या बोला है? रिवीजन किस में फाइल करते हैं हम? 6 और 7 में. ठीक है, ऑन पिटीशन फॉर रिवीजन ऑफ रेंट. ठीक है, हम 6 और 7 में क्या कर रहे हैं? रिवीजन ऑफ रेंट की पिटीशन फाइल कर रहे हैं. That is an appeal against an order on such a petition. Okay, a fixed court fee for rupees 250 shall be payable. कितनी दी जाएगी? 250 पे की जाएगी. Okay. Next, 29. Act to have overriding effect. ये act क्या है? इसका overriding effect है. Okay. क्या कहता है ये? The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. ठीक है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा. कुछ और कहीं और कुछ बात लिखी हुई है तो ये वाला एक्ट उसके ऊपर ओवरराइड करेगा, मतलब उसको खत्म कर देगा और ये वाला एक्ट वैलिड होगा वहां पर. ठीक है, नेक्स्ट, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. किसके पास पावर है यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करेगी? डिफिकल्टीज रिमूव कर सकती है. बहुत सिंपल है, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 31, दैट इज पावर टू मेक रूल्स. रूल्स कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. ओके, ये आप पढ़ लेना, इसमें और कुछ भी नहीं है. एंड 32 इज रिगार्डिंग रिपील्स एंड सेविंग्स. जो पुराना था 1950 का, उसको रिपील कर दिया गया है. एंड चलो, with this we have completed our Rajasthan Rent Control Act. अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो, then please do ask me. Okay, you can comment and you can ask me regarding this. Thank you so much.